Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हरे कृष्णा. So we have we are continuing to discuss 13th chapter. In the 13th chapter, in the last session, पिछले सत्र में हमने 26, 27, 28 ये तीन श्लोका को हमने अध्ययन किया. We've learned from the three shlokas 26, 27 and 28. Interestingly, आपने नोटिस किया होगा कि अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछा था. Arjun asked 6 questions and Krishna started answering from the third question first. So the first question he addressed was the third question. तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए वो आए up to 6th question, 3rd, 4th, 5th, 6th, and then he took up the first and second questions. He gave the answers for the first and second question. पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने सबसे अंत में दिया, which we learnt in the 26th shloka. And then Krishna has now started to virtually summarize, virtually wind up the topic on nature, enjoyer, consciousness. तो कृष्ण अभी इस अध्याय को समाप्त करने वाले हैं, तो वो ब्रीफ समरी देना प्रारंभ कर चुके हैं अर्जुन को. किस विषयों के बारे में? निसर्ग, प्रकृति, भोक्ता, एंजॉयर और चेतना, कॉन्शियसनेस. So he has started addressing the summary of these three aspects of discussion in the 13th chapter. So, तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद और इतना सब कुछ जानने के बाद Krishna is now trying to what I'm trying to say is Krishna has given us a treasure of knowledge now. भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान का भंडार उन्होंने प्रदान किया है. और not only has talked about कर्म योगा, तो कर्म योग के बारे में बात कर चुके हैं, भक्ति योग के बारे में पूर्ण तरीके से बात कर चुके हैं. He has completely talked about all the aspects of bhakti yoga. And now ज्ञान योगा part he has started. तो ज्ञान योग के बारे में वो अभी बात कर रहे हैं. तो कृष्णा इज गिविंग अ कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान जो है वो भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को और हम सबको दे रहे हैं. कृष्णा इज गिविंग अस कंप्लीट नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स. तो भौतिक और आध्यात्मिक लोक का उन्होंने परिचय दे दिया हमें. So now that we have got this knowledge, or now that we are getting equipped with this knowledge, what becomes our fundamental duty? Our fundamental duty is to apply this knowledge. एक कहावत है, नॉलेज इज पावर. मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज इज पावर, ये अर्ध सत्य है. ज्ञान से शक्ति है, ज्ञान से कोई शक्तिमान बन जाएगा, ये अर्ध सत्य है. केवल ज्ञान से कोई शक्तिमान नहीं बन जाएगा. ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके
ही कोई शक्तिमान बन सकता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज व्हाट मेक्स अस पावरफुल। सो नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान, ज्ञान है मेरे पास, धन है मेरे पास, तो मेरे पास संपत्ति है, तो इट इज पोटेंशियल पावर। लेकिन उस संपत्ति को, उस जो पैसे हैं मेरे पास, किस तरीके से मैं अपने जीवन में उसको उपयोग करूंगा, दैट मच यूजफुल मनी विल बी फॉर मी। और सिंपली लाइंग अराउंड, इट इज ऑफ नो यूज, कागज का टुकड़ा है। तो ठीक वैसे ही ज्ञान का भंडार हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उस भंडार को जब हम उपयोग नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, so then that only remains a potential power. It actually becomes power when we utilize it. But Krishna has still told us कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तो केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके जन्म और उनके सारे कार्य लीलाओं को दिव्य हम जान के सब कुछ समझेंगे, तो सिंपली बाय हैविंग दिस नॉलेज। So although I said knowledge is power, knowledge is potential power, but spiritual knowledge, especially the highest knowledge of spiritual realm, that is knowledge of Krishna. So knowing Krishna itself is enough for us to be powerful. So what is that application? Even if I am not able to apply it practically, simply by having this theoretical knowledge, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो केवल इस अध्याय का ज्ञान, इस भगवत गीता का ज्ञान, केवल उसको पढ़ के, समझ के हम भगवत धाम, गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। सो दैट मच पावरफुल दिस नॉलेज इज that it doesn't even require an application of that knowledge. However, a sane man having come to know his position as servant of Krishna will automatically, a servant of Krishna, a devotee of Krishna will start serving Krishna. He will bring it into practical action. So now we're coming to the last 5 shlokas. So today we are going to start with the 29th shloka. Samam pashyan hi sarvatra samavasthitam ishwaram nahi nasti atmanatmanam ततो याति पराम गतिम। तब तक मैंने क्या बात किया? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो चौथे अध्याय में कृष्णा ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर मेरे बारे में सिर्फ कृष्ण के बारे में ज्ञान रखता है कोई, कि वो दिव्य है, उनके कार्य दिव्य है, उनके जन्म दिव्य है, वो सब कुछ उनका दिव्य है, अगर कोई जान लेता है तो भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन जाता है। And now in the 13th chapter, in this 29th shloka, Krishna is telling us, Samam Pashyan hi sarvatra, equally seeing everywhere. समदृष्टि से वो हर जगह हर कुछ देख रहा है। तो समवस्थितम ईश्वरम, तो just directly start with the translation. One who sees the super soul in every living being. समवस्थितम ईश्वरम, हर एक जीव के अंदर जो परमात्मा को देखता है। And equal everywhere, being and equal everywhere, does not degrade himself by his mind. Samam pashyan is sarvatra samavasthitam ishwaram. So in a non-partial way, he sees that the Lord, in his feature as Paramatma, is present in every living entity. In fact, he is present everywhere. Anurenu Trunakashta. Even in the non-living entities, atoms is present. तो उससे क्या होगा? न हिनस्ति आत्मनात्मानम। तो केवल
ये दृष्टि रखने से, ये देखने से, ये देख पाने से कि हर एक के हृदय में हर जगह परमात्मा का उपस्थिति है। नहीं नस्ति आत्मा नाम, इट डज नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय हिज माइंड। तो अपने मन का पतन नहीं होता है। तो ततो याति पराम गतिम, द सेम कॉन्सेप्ट इज कमिंग। ततो याति पराम गतिम, so he approaches the transcendental distillation। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति। सो अर्जुना, मामेति मेरे पास आएगा। और यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं पराम गति मेरे पास आएगा। कौन मेरे पास आएगा? चौथे अध्याय में बताया, जो मेरे पास, जो मेरे बारे में ज्ञान रखता है, who knows me, he will come back to me। जो मुझे हर जगह परमात्मा के रूप में देखता है, he will come back to me। So Krishna is telling, somehow or the other, when we are in connect with Krishna, when we are connected with Krishna, तो कृष्ण के संपर्क में, योग में है, तो हमारा भगवत नाम जाना, परम गति पाना निश्चित है। So the living entity, by accepting his material existence as just so much suffering, can become situated in a spiritual existence। तो अगर कोई व्यक्ति जान लेता है ये जो भौतिक जिंदगी है, ये उपद्रव भरा हुआ है, और ये हमारा संवैधानिक स्थिति नहीं है, बस ये जानने से उसका आध्यात्मिक जो पथ है प्रारंभ हो जाता है। पहला कदम वो रख चुका है आध्यात्मिक प्रगति की ओर। सो यू सी, इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी में बी एक्सक्यूजेबल। तो कुछ लोगों को अभी ज्ञान वर्धन नहीं हुआ है, तो वो मतलब अज्ञानी है, तो इस ये एक्सक्यूजेबल है, इसको माफ किया जा सकता है। इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी मे बी एक्सक्यूजेबल, बट व्हाट इज नॉट एक्सक्यूजेबल इज इग्नोरिंग रियलिटी। जानने के बाद अब हमें पता चल गया कि भौतिक जिंदगी क्या है, आध्यात्मिक पथ क्या है, कृष्णा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा और कृष्णा के संबंध क्या है, और मुझे कैसे कैसे मतलब कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना है। अब मैं ये ज्ञान पा चुका हूं। नो इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी, नो इग्नोरिंग रियलिटी। तो ये जानने के बाद इसको नजरअंदाज कर देना, ये काबिल माफ नहीं है। पहले इस सिचुएशन में वो जानता नहीं था, अभी प्रकाश नहीं हुआ, he was not enlightened, so he was acting in certain ways। ठीक है, एक्सक्यूजेबल। लेकिन अब ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद अगर हम भक्तिमय सेवा नहीं करेंगे, if we don't come back into our constitutional position of serving the Lord, हमारे सांविधानिक स्थिति में भगवत सेवा में हम अगर नहीं जुड़ेंगे, तो इसका कोई हल नहीं है। So if one understands the Supreme is situated in its Paramatma manifestation everywhere, if one can see the presence of Supreme Person of Godhead in every living thing, he does not degrade himself। न हीनस्ति आत्मनात्मानम, कौन? समवस्थितम ईश्वरम। कहाँ पे? सर्वत्र। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। And he therefore gradually advances to the spiritual world। ततो याति पराम गतिम। ये व्यक्ति, ये भक्त मेरे भगवत धाम वापस आएगा, योग्य बन गया मेरे भगवत धाम वापस आने के हेतु। So further, Prabhupada says the mind is generally addicted to the self-centered processes। लेकिन मन क्या है? केवल अपने मतलब इंद्रिय विषयों में ही फंसा रहता है। Unfortunately, it is guided by the senses, although it is superior to the senses। तो इंद्रियों से परा है मन, लेकिन क्योंकि वो भौतिक मनोस्थिति में है व्यक्ति, तो इंद्रियों के गुलाम बन के मन रह जाता है। ऑल्दो मन को इंद्रियों को नियंत्रण में रहना है, इंद्रियों को गुलाम बन के मन रह जाता है। सो इट इज लाइक अ
powerful lion who is submitting itself to a very weak owner. एक पंजा मारेगा तो शेर तो उस व्यक्ति का ऐसे के तैसे हो जाएगा. लेकिन unfortunately has been conditioned from a small cub. The lion has been conditioned to think that this person is superior. And what its experiences are when it was a cub. जब वो शिशु अवस्था में था, कब, हाँ, तो जब उस समय उनको कंट्रोल करा जाता था, अभी वो बड़ा शेर बन गया. He's become a big tiger lion, but he continues to be under the control of this man, whom he can just take down in 1 minute. So a soul has become the mind as the soul and the mind has become a subordinate of the senses, and that is the story of our material existence. हमारे भौतिक जो स्थिति है उसका अस्तित्व का मूल कारण क्या है? That the mind has become subordinate to the senses because of materialistic vision. So all activities are performed by the body, by nature. Prakriti kriyamanani gunai sarvani sarvashah. तो ये देह का जो गतिविधियां हैं प्रकृति के द्वारा हो रहा है, गुण कर्म के हिसाब से हो रहा है. आत्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है. आत्मा हैज ओनली सम चॉइसेस टू मेक, एंड उन्होंने अपना चॉइस कर लिया है. अभी अभी मुझे कृष्ण के अधीन नहीं रहना है, मुझे अपना मर्जी का मालिक खुद बनना है. तो तुरंत माया देवी उसको भौतिक जगत में इम्प्लांट कर दिया, लेके आ गई यहाँ पे. सो व्हेन द माइंड टर्न्स टू सुपर सोल, लेकिन जब मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा, वन बिकम्स एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. केवल भगवान की तरफ मुंह करने से, तो कृष्ण भूलिया जीवा भोगा वांछा करे, तो कृष्ण से विमुख होके भोग का वांछ करके भौतिक स्थिति में पहुंच गया. पाशाते माया झपटिया धरे, और माया तुरंत उसको इस भौतिक जगत में लेके आ गई. लेकिन अब जीव ज्ञान के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों के मार्गदर्शन से वापिस भगवान की तरफ मुड़ गया. So again he becomes powerful because he starts seeing his ultimate destination now. So moving further, we will go ahead with the next shloka, shloka number 30. So in shloka number 30, Krishna reinforces what he has said just now. Prakritaiva cha karmani kriyamanani sarvashah yapashyati tatatmanam akartaram sapashyati. So previously also we have learnt, and further also we will come across that shloka. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashah. तो सब कुछ जो प्रकृति है उसके द्वारा हो रहा है. और प्रकृति कैसे मतलब अपना गतिविधियां आगे बढ़ा रही है हमारी देह के माध्यम से. गुण कर्म, गुण और कर्म के आधार पे वो हमारे गतिविधियों को मार्गदर्शन दे रही है प्रकृति के द्वारा. और यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तत आत्माम तत आत्मानम अकर्तारम स पश्यति. तो इसका मतलब क्या हुआ? वन हु सीज दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द बॉडी, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, so which is created of material nature. तो ये जो भौतिक देह है प्रकृति का देन है. It's been gifted to us by Mother Nature based on our guna and karma, our past experiences, and sees that the self does nothing, actually sees. और जो व्यक्ति ये देख रहा है, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम, आत्मा कुछ भी नहीं कर रही है. So it's like a person sitting in a car which has now gone out of control. आत्मा कुछ कर ही नहीं रहा.
because the vehicle has gone out of control, or the vehicle has been now taken over, the control of the vehicle has been taken over by other lower energies. So one who sees, तो एक विद्यमान व्यक्ति देख रहा है ये तो आत्मा कुछ कर ही नहीं रहा, ये जो कर रहा है भौतिक शरीर के द्वारा हो रहा है। और भौतिक शरीर कैसे कार्य कर रहा है? गुण और कर्म के आधार पे उसका गतिविधियां चल रही है। इसका अंत क्या है? इसका अंत ये है, जब वो पहचान लेता है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, तो मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इज द फर्स्ट tangible knowledge that we get in spiritual life. भगवत गीता का बोधन भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, पहले तो वो एक मित्र के तरह बर्ताव कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने याचन किया, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपको गुरु मान लूंगा। तो आई नाउ कंसिडर यू एज माय टीचर, my guru, my spiritual master, please show me the way from this duality that I'm facing, from this difficult situation. So Krishna immediately takes the role of a teacher, and the first thing he does is he chastises Arjuna. तो पहले ही कदम में अर्जुन को वो फटकार लगाते हैं कि क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या ना करने की सोच रहा है तुम एक योद्धा होके युद्ध नहीं लड़ोगे धर्म का, धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे, तुम्हें फिर तुम योद्धा होके क्या फायदा हो गया? तो तुम तो नपुंसक की तरह बर्ताव कर रहे हो। So Krishna chastises and then he starts देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, दूसरे अध्याय में ऐसे वो प्रारंभ करते। The first lesson is I am not this body, I am the spirit soul. So Prabhupada now explains in this purport very nicely. He reinforces this particular concept that Krishna brings about in the shloka. This body is made by material nature under the direction of the super soul, and whatever activities are going on in respect to one's body are not his doing. So Prabhupada is now making it more clear. Krishna, Paramatma is in control. Paramatma के मार्गदर्शन से ये सब कुछ हो रहा है. All this is happening under the direction of परमात्मा. प्रकृति का नियंत्रण, मार्गदर्शन, सूत्रधार कौन है? परमात्मा श्री कृष्णा है. So Prakriti is the, you can say that supervisor, but the manager is Krishna. So it is above the supervisor. Whatever one is supposed to do, either for happiness or for distress, one is forced to do because of bodily constitution. जो सुख और दुख का कार्यों में, गतिविधियों में हम जो लगे हैं, वो आत्मा उस दिशा में नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो विवश है, क्योंकि अभी वो एक गाड़ी में ऐसे बैठ गया है जो बेनियंत्रण चल रहा है, या फिर कुछ और फैक्टर्स के नियंत्रण में चल रहा है. So the self, however, is outside all these bodily activities. So the विद्यमान व्यक्ति जानता है कि मेरे शरीर की वजह से, मेरे गुण और कर्म के वजह से जो कर्म जो मेरे कर्म में है वो आ रहा है मेरी जिंदगी में, और मेरा जो रिएक्शंस है वो स्वभाव की स्वभाव की वजह से है, गुण की वजह से है, जो मैं पिछले जन्मों से लेके आ रहा हूं. तो तत्पश्चात वो सोचता है कि मुझे अभी क्या करना है. So when I am not able to control the steering wheel, then I look to the higher forces for an external force, and that is the uh, superior energy of the Lord. So to fulfill desires, one is given the body with which he acts accordingly. देह क्यों मिला है? हमारे अनेक इच्छाएं हैं और थी, और उस आधार पे हमें ये शरीर मिला है उसको परिपूर्ण करने के लिए. So there are 84 lakh species of life. So based on the different combinations and permutations of desires, you got this body. Practically speaking, the body is a machine. तो यंत्रा रूढ़ानी माया. तो ये देह एक यंत्र की तरह है, मशीन की तरह है, and is designed by the Supreme Lord. तो इसका
जो व्हाट इज दैट डिजाइन किसने किया है? भगवान ने किया है। किस आधार पे किया है? टू फुलफिल द डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने का फैसिलिटी हमारे लिए भगवान ने दे दी। चलो तुम्हारी ये सारी इच्छा है, तो इसके लिए ऐसा देह चाहिए। तो आप मनुष्य का देह ले लीजिए, आप प्राणी का देह ले लीजिए, आप कृमिकीट का देह ले लीजिए। तो ऐसे अनेक 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, 84 लाख योनिया है। सो because of desires, one is put into different difficult circumstances to suffer or to enjoy. तो तो हमारी जिंदगी में जो आप बीती है और जो बीत रहा है अभी, और कल भी जो बीतेगा, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण में ही रहेंगे, तो वो किस आधार पे चलेगा? हमारी इच्छाओं के, उसको पूर्ण करने के लिए सारे, किसी का इच्छा है कि धनवान बनना, तो उस तरफ वो अपना गतिविधियां बढ़ा रहा है। किसी की इच्छा है कि वो आध्यात्मिक की तरफ जाना, उसकी इससे वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक इच्छा कब जागेगा? भगवान की असीम हेतु रहित कृपा से, गुरु के हेतु रहित कृपा से वो जागेगा। So one has to be extremely fortunate to come across a spiritual master, and we all are very fortunate to have come across Srila Prabhupada and made him a part of our life. So one who has such a vision is an actual seer, जो देख रहा है कि ये गतिविधियां देह की वजह से हो रहा है। So further, we will go ahead with the next shloka also, shloka number 31. यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा. So Krishna is now reinforcing further concepts of how one can attain a spiritual vision. ब्रह्म संपद्यते तदा, तो कैसे एक आध्यात्मिक दृष्टि हम पा सकते हैं? तो यदा भूत पृथक भाव, so the translation says, when a sensible man ceases to see different identities, यथा भूत पृथक भावम, तो ये ना देखते हुए, मतलब अलग अलग देह का अलग अलग जो पहचान है वो ना देखते हुए, विच आर ड्यू टू डिफरेंट मेटीरियल बॉडीज। तो ये पृथक भाव क्यों है? तो सबका अपना अपना देह है, there is a particular body of a particular person. He attains to Brahman conception. तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो अगर कोई ऐसे दृष्टिकोण ज्ञान के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से पा लेगा, ब्रह्म संपद्यते तदा, देन ही अटेन्स टू ब्रह्मन कंसेप्शन। तो ब्रह्मन के स्तर पे वो पहुंचेगा। Thus he sees that beings are expanded everywhere. तो पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम, तो हर एक देह में परमात्मा है और आत्मा है, और देह के आधार पे गतिविधियां चल रहा है। तो ये जानने से ब्रह्म संपद्यते तदा, तो वो इज अटेन्स टू ब्रह्मन कंसेप्शन। सो वन कैन सी the various bodies of living entities arise due to different desires of the individual soul. 84 लाख तरीके का इच्छाएं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके आधार से हमारा ये देह हमें मिल गया है, प्रकृति ने दिया है। So when we find, therefore, someone is a demigod, someone is a human being, someone is a cat, someone is a dog. So बिल्ली, कुत्ता, देव, मानव, ये सब शरीर इच्छा गुण कर्म के आधार पे किसी को मिला है, और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से अब हम ये देख पा रहे हैं, और भगवान की तरफ हमने अपना मुख कर लिया है। The spiritual master is leading us towards the Supreme Lord. This material differentiation is due to material conception of life. जैसे कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, मामका पांडवाश्चैव,
मेरा और पांडव के पुत्र का, पांडुपुत्र का। तो मेरा, उसका, mine, me, myself, these all concepts are coming from the identification of the soul with the body. So it is the materialistic view. The spirit soul, due to contact with material nature, gets different types of bodies. So again and again, Prabhupada is reinforcing this. And one can see this, he attains spiritual vision. So how do I get my spiritual vision? So I get my spiritual vision when I start seeing through Shastra, Shastra Chakshusha, शास्त्र के मार्गदर्शन से जब मैं चीजों को देखूंगा, when my vision becomes guided by spiritual knowledge, that is called Shastra Chakshusha, Divya Chakshusha. And by that what happens, we attain the spiritual vision, आध्यात्मिक दृष्टि हम पा लेते हैं. So one becomes beautified in this consciousness. तो उससे क्या होगा? तो हमारा जो चेतना है सांविधानिक स्थिति में पहुंचेगा, जो सुंदर है. And be able to develop Krishna consciousness is in a spiritual identity. और फिर कृष्ण भावनामृत की ओर वो बढ़ रहा है, अपना स्वभाव को कृष्ण भावनामृत बना रहा है. How he then sees things will be explained in the next verse. So in the next verse, which we will go ahead quickly because all these shlokas are related. I'm bunching them all together. अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. Again, you see, similar concept. Krishna is again and again bringing that concept. What is that? अनादित्वान्, eternally. तो अनादिकाल से, निर्गुणत्वात्, दिव्य, निर्गुण, दिव्य, तो परम, जो इस भौतिक लोक से परा है. अच्छा, परमात्मायम, द स्पिरिट, ये जो आत्मा है, परमात्मा है, तो अव्ययः, इनएग्जॉस्टेबल, मिट नहीं सकता. शरीरस्थ अभी, लेकिन ये शरीर में है जो मिट सकता है, लेकिन आत्मा मिट नहीं सकता. कौन्तेय न करोति न लिप्यते. हे कुंती पुत्र अर्जुन, न करोति, तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है. न लिप्यते, तो वो बद्ध नहीं होगा. दोज विद द विजन ऑफ एटर्निटी, अनादित्वा निर्गुणत्वा, दिव्य सनातन जो दृष्टि पा लेता है, सनातनी जो है, सनातन धर्म का पालन जो कर रहा है, तो can see that the soul is transcendental, the soul is para, तो आत्मा परा है, eternal, अनादित्वान, फिर beyond the modes of material nature, निर्गुणत्वात्, तो निर्गुण है, भौतिक भौतिक जो तत्व है उसमें नहीं है. Despite contact with material body, Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. तो इस देह में रहते हुए भी वो मोक्ष की तरफ जाने का मतलब अपना जो जर्नी है वो प्रारंभ कर लेगा. न करोति न लिप्यते, तो कर्मों से वो बद्ध नहीं होगा, गुणों से बद्ध नहीं होगा, तो आध्यात्मिक गुण की प्रवृत्ति होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति जागेगा, और कृष्ण भावनामृत स्थिति में वो अपना गतिविधियां अपने सांविधानिक स्थिति के मध्य वो प्रारंभ करेगा. So Prabhupada says here, a living entity appears to be born because of the birth of material body. आत्मा तो अव्यय है, आत्मा तो अजन्म है, जो जन्म लिया है वो देह है. So your birthday is the day your body has come into this world, not that you have come into this world. You're already very much a part of creation. आत्मा अमर है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अनादि काल से है. तो आगमन भौतिक जगत में शरीर का आगमन होता है. But actually the living being is eternal.
He is not born in spite of his being situated in a material body. अजन्मा है आत्मा, जैसे कि भगवान है अजन्मा, आत्मा भी अजन्मा है. एंड इज ट्रांसेंडेंटल एंड एटर्नल, दिव्य और शाश्वत. ये उसका गुण है आत्मा का. दस ही कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो अव्यय है, उसका नाश नहीं हो सकता. माई नेचर इज फुल ऑफ ब्लिस. तो आनंदमय अभ्यासात. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अवर मटेरियल कंडीशनिंग दैट वी स्टार्ट लैमेंटिंग. दुख हमें क्यों हो रहा है? दुख इसलिए होता है क्योंकि हम भौतिक दृष्टिकोण में अभी भी चीजों को देख रहे हैं. When we see with the higher vision, when we see with the greater purpose beyond everything, beyond anything, that Krishna is there, under Krishna's guidance, everything is happening. When we start realizing this, then we stop lamenting and we start becoming happy. In fact, Prabhupada said, a Krishna's devotee is never lamenting. और भौतिक चीजों के लिए वो लैमेंट ही नहीं करता है. हाँ, ये इसलिए लैमेंट कर सकता है कि अभी मुझे भक्ति मेरे अंदर नहीं जागा, मैं कितना पतित हूँ कि मुझे कृष्ण के ऊपर भक्ति नहीं आ रहा है. ये लैमेंटेशन, दिस इज स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, दिस इज फाइन. सो द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यू टू हिज कॉन्टैक्ट विद मेटल बॉडीज डू नॉट एंटैंगल हिम. तो देह है, संबंधे है, तो to maintain the body, I have to do some work. I have to keep it active. I have got some relationships due to my material bondages. So wife, children, husband, relatives, father, mother, इन सब का जो responsibility है मुझे लेना है. I cannot become irresponsible. So, but while acting as a son, as a wife, as a husband, as a daughter, as a mother, and as a relative, as a citizen of this particular country, based on identification with the body, where somebody will not get entangled as long as he makes Krishna the center of his life, and Krishna and all his activities, the circumference of all his actions are encompassing that center called Krishna. So, this is how Krishna comes to these concepts, and in the next 2-3 shlokas, he will complete the discussion of this chapter, which we will finish in the next session. That will be mostly tomorrow. Anyway, it will be announced to you if I'm going to take a class. So, just summarizing. So, when we feel Krishna is far away, तो अगर हमें अभी महसूस हो रहा है कि कृष्णा बहुत दूर है हमसे, तो ये इसलिए नहीं कि कृष्णा हमसे दूर चला गया. ये इसलिए है कि क्योंकि हम लोग कृष्णा से दूर चले गए. इट इज वी हु हैव गॉन अवे फ्रॉम कृष्णा, whereas कृष्णा इज ऑलवेज विथ अस एज परमात्मा. तो हमारे साथ रहते हुए भी हमने उनको नजरअंदाज कर दिया. सो इट इज वी हु हैव गॉन अवे फ्रॉम कृष्णा. सो वी हैव टू मेक अ कम बैक. It is we who have to make the comeback. It is we who have to make that U-turn. So, knowledge of philosophy. So, ये अभी तक हमने मोक्ष का मोक्ष को प्राप्त करने का ज्ञान हमने सीखा. So, events are not in our control, but experiences are. तो हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो शायद ही हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उससे जो हम सीखेंगे और उससे अपना जिंदगी को जब हम आगे बढ़ाएंगे, वो ये हमारे कंट्रोल में है. एंड टू बी फॉर्चुनेट एंड गेट इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटी